how are you? I hope all of you are fine, and I am also fine. And you are learning everything, whatever work we are giving you, are completing your work up to date. You are not keeping anything pending, and be taking the online classes. Don't show negligence. Okay, students. Now, already I have explained you the paragraph. Now today I am going to give you some word meanings of your chapter 1. Okay, so let's start now. The ENTHUSIASM, enthusiasm. Enthusiasm means utsah. Enthusiasm means utsah. Okay. Next is bounce. BOUNDS. Bounce. Bounce means seema. Bounce means seema. Next is obviously. Okay. Obviously means स्पष्ट रूप से. OBVIOUSLY. Obviously means स्पष्ट रूप से. Next is compromising. 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 Compromising means समझौता. Compromising means समझौता. Accommodated. Accommodated means adapt to or fit in with. Accommodated means ACCOMMODATED. accommodated. accommodated का मतलब होता है जैसे कि आप कहीं गए हो, वहाँ का वातावरण थोड़ा अलग है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से रहना पड़ता है. सो accommodated. adapt to. adapt to का मतलब उस वहाँ के वातावरण को क्या करना, उसके हिसाब से ढल जाना. ओके. और fit in with, तो उसका मतलब यही हुआ कि उसके हिसाब से हमें ढल जाना. मीन्स हर एक चीज़ से जब कोई चीज़ हमारे हमसे सूटेबल नहीं होती तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है. सो accommodated. ओके. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड. APTITUDE. एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मीन्स स्किल और टैलेंट, प्रतिभा जो होती है. ओके. एप्टीट्यूड मीन्स स्किल और टैलेंट. नेक्स्ट इज SPRINT. sprint. sprint means run at full speed over a short distance. यानी थोड़ी दूरी के लिए क्या करना, बहुत ही तेजी से दौड़ लगाना. ओके. sprint means run at full speed over a short distance. Next is keenly. keenly means उत्सुक. keenly means उत्सुक. KEENLY. keenly means उत्सुक. Next is RECEDED. receded. receded means move away from a previous position. यानी जो previous पहले की जो स्थिति थी वहां से आगे बढ़ जाना. ओके. नेक्स्ट इज morsel. morsel means bit of food. means खाने का जो टुकड़ा होता है, मतलब एक निवाला. उसको खाए बिना APJ अब्दुल कलाम को क्या नहीं करती थी उनकी माँ, बाहर जाने नहीं देती थी, मतलब स्कूल जाने नहीं देती थी उनको. जितना खाना उनको डाला जाता था, दिया जाता था, उसका हर एक निवाला पूरा करने के बाद ही वो अपने घर से बाहर निकलते थे. उसको क्या कहते हैं, morsel. morsel means bit of food, निवाला. Okay students, now what you have to do, you have to take the screenshot of this. So take a screenshot. Yes students, now next word meaning is accurately. 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 accurately means सही ढंग से. accurately means सही ढंग से. Next is reel off. reel off means to tell or recite readily. reel off means to tell or recite readily. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि किसी बात को स्पष्ट तरीके से किसी को बताना या सुनाना. ओके. रील ऑफ मीन्स किसी बात को अच्छे तरीके से उन्हें समझाकर बताना या फिर सुनाना. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज फ्रेटेड. FRETTED. फ्रेटेड. फ्रेटेड मीन्स बी कॉन्स्टेंटली और विजिबली अनएक्शियस. फ्रेटेड मीन्स बी कॉन्स्टेंटली और विजिबली अनएक्शियस. द मीनिंग मीन्स निरंतर या स्पष्ट रूप से चिंतित रहना. ओके. नेक्स्ट इज fallout. fallout means become detached and drop out. Okay. fallout means become detached and drop out. Next is cheerful. 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 cheerful means prasann. cheerful means prasann. Next is whistle. WHISTLE.
विस्टल मीन सीटी बजाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ट्रेन आती थी तो वो क्या आवाज करते हुए आती, उसकी एक बहुत तेजी से ट्रेन की आवाज होती है ना, वो अपनी ही हॉर्न देते हुए आगे बढ़ती, तो उसी के कहा जा रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है विस्टल। विस्टल मीन सीटी बजाना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सो टेक इट। Yes students, now you can see on the board. Now I am going to read the paragraph. Paragraph I have already given on the screen on the board. The page number 4 of your textbook. If you are having the textbook, take out your textbook. And those students who are not having the textbook, please keep your concentration on the board. Okay, and see every word and understood that word what I am explaining you. Okay, now let's start page number 4. Of the chapter 1. In the evening after school was over, I would do the rounds of Samshuddin's customers again collecting dues. In the evening, जैसे स्कूल कंप्लीट हो जाता तो शाम को क्या करते थे एपीजे अब्दुल कलाम दोबारा से क्या करते, जिन जिनको वो अखबार बांटने जाते थे, तो जो शमशुद्दीन जी के ग्राहक थे उन ग्राहकों के पास वो जाते ताकि वो जो बकाया राशि है यानी जो पैसे होते हैं, जो अखबार के पैसे होते हैं वो लेने वो उनके पास जाते। देन आई वुड मीट हिम सो दैट ही कुड वर्क आउट द अकाउंट्स ऑफ द डे। फिर उसके बाद में क्या करता, मैं जाकर शमशुद्दीन जी से मिलता और फिर उन्हें वो पैसा दे देता और हिसाब दे देता ताकि वो उस दिन का अकाउंट संभाल ले, समझ ले। At that time, sitting somewhere near the sea with the breeze blowing in, Jalaluddin और शमशुद्दीन would finally open up the day's paper. उस वक्त वो क्या करते रहते, कहीं समुद्र के पास बैठते जहाँ पर बहुत ही मंद सी पवन बहती रहती थी, जहाँ पर जलालुद्दीन या शमशुद्दीन क्या करते रहते थे, वहाँ बैठकर वो पूरे दिन भर का जो पेपर होता था वो पेपर वो लेते। All of us would pore over the दिनामणि। हम लोग कौन सा पेपर लेते थे, वो दिनामणि का, जो तमिलनाडु का जो दिनामणि पेपर था वो लेकर पढ़ना शुरू करते। One of them would read the news items and slowly the larger outside world would enter our consciousness. One of them would, इनमें से कोई ना कोई एक पेपर लेता और जोर से हर एक खबर को पढ़ता था, जिससे हमें ये पता लगता था कि बाहर देश में प्रदेश में कुछ क्या हो रहा, पूरे ब्रह्मांड में संसार में क्या हो रहा है। गांधी, कांग्रेस, हिटलर, करियर, ईवी रामास्वामी, देयर वर्ड्स एंड अपील्स वुड हैंग इन द इवनिंग एयर। गांधी जी के, कांग्रेस के, हिटलर के, इन सभी के जो शब्द होते थे वो शाम को क्या करते थे, ऐसे लगता था जैसे कि शाम की जो हवा बहती रहती है, मंद पवन हवा, उन हवाओं में वो आवाजें उनकी क्या कर रही है, निवेदन कर रही हो। I would trace the photos and words with my fingers, wondering what it must be like to be out there in the large world with all of them. मैं क्या करता था, मैं हमेशा उन फोटोज को और उन शब्दों को क्या करता, मेरे उंगलियों से पहचानने की कोशिश करता कि ये शब्द क्या कहना चाहते हैं। ये एक आश्चर्यचकित वाली बात है कि पूरे संसार में जो कुछ भी होता है हमें इन खबरों से पता चल जाता है। Maybe I thought to myself one day I would go to the big cities like Madras, Bombay and Calcutta. फिर क्या हुआ, Maybe हो सकता है, I thought मैंने सोचा, क्या सोचा एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने आप के बारे में सोचा कि हो सकता है एक दिन में बड़े शहरों में जा सकूं, जैसे कि मद्रास है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, वहाँ मैं जा सकता हूँ। What would I say if I ever got to meet people like गांधी एंड नेहरू? फिर मैं क्या कहूँगा जब मैं ऐसे व्यक्तियों से मिलूंगा जैसे कि गांधी जी हुए, नेहरू हुए, फिर मैं उनसे क्या बोलूँगा। But such thoughts were soon interrupted by the calls of my playmates and then for dinner. लेकिन जब मैं ऐसा सोच रहा था, उन्होंने अपने मन ही मन में ये बातें सोचने लगे, तो उसी वक्त क्या हुआ, किसी ने बाध्य कर दिया, क्या कर दी, बाधिता डाली, किस चीज से, कॉल्स मीन्स उन्हें कोई उनके जो प्लेमेट्स यानी जो उनके जो मित्र थे वो उनको आवाजें देकर उन्होंने क्या किया, जो वो सोच रहे थे उस पर बाधित कर दिया उनको, मतलब उनका ध्यान वहां से हट गया और फिर थोड़ी देर में वो रात का जो भोजन होता है उसके लिए पुकारने लगे। They were homework to be done and even an 8-year-old has only that much energy to spend. और फिर उसके बाद मुझे क्या करना बाकी रह जाता है, मेरा जो गृह कार्य होता है वो भी मुझे पूरा करना है। और यहाँ तक कि मैं केवल एक 8 साल का ही छोटा एक लड़का हूँ जिसके पास केवल इतनी ही
ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, ताकत होती है, ताकि मैं उसका उपयोग कर सकूं उस एक दिन के लिए। By 9 PM I would be fast asleep. लगभग रात के 9 बजे मैं क्या करता था, मैं जल्दी जाकर सो जाता। As the next day more studies and the life of working में lay in store. तो पिछले दिन के बारे में सोचते हुए कि मेरी जो पढ़ाई है वो और मेरे जो रोज का जो जीवन का जो काम होता है वो सब कुछ क्या है, एक स्टोर में यानी एकत्रित होके वो भी लेट गए हैं। तो कल सुबह मुझे वो काम तो करना ही है। दिस रूटीन कंटिन्यूड फॉर अबाउट ए ईयर। लगभग 1 साल तक क्या हुआ, ये रूटीन यानी दिनचर्या चलता रहा। इन दैट 1 year ऑफ रनिंग अराउंड विद द पेपर्स आई ग्रू टॉलर एंड ब्राउनर। पूरे उस 1 साल में जब मैं पेपर्स के साथ घूमता रहा, पढ़ने जाता था, कुरान शरीफ जाता था, स्कूल जाता था, फिर वहाँ से वापस आने के बाद घर पे थोड़ी देर के लिए मतलब शमशुद्दीन के पास जाता, उनको पूरे हिसाब देता व्हाट ही वाज डूइंग। Means he was going to school. First early in the morning he went to the maths teacher for the teaching of the maths. Then he went back. Then from there he went to the Quran Sharif, and after that he went from there to the school. Then again he came back to the people who were taking the newspaper to collect the dues. And from there where he went to Shamsuddin to give out the whole working of the day to him, the money to him. Then at the breeze near the sea they sat together, they started reading the newspaper and everything. They came to know that what is going in the whole world like this. And what the APJ Abdul Kalam, he is reciting the everything. For whole 1 year he did the same thing. At last when he grown up, he was taller and he was browner. Okay, now I also learned that I could now judge quite accurately that the distances I could cover at a sprint with a bundle of papers in my hand, and hence could time my arrival at various localities at the same time every day. इसके साथ साथ मैंने खुद जजमेंट करना सीखा कि कैसे मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से सीधे ढंग से मुझे दूरियां तय करनी चाहिए, कैसे मुझे जो बंडल का पेपर मुझे मेरे अपने हाथों में लेना चाहिए, जाकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हर एक चीज़ में दिन ब दिन प्रतिदिन मतलब सीखता गया और मैं अप टू डेट रहा उसके लिए। सही ढंग से मैंने ये काम किया। I could calculate in my head the amount vowed to Shamsuddin by which of his subscribers, and I could reel off the names of those who had not paid up that day. I could calculate, मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट यानी जोड़ कर सकता था कि जिन जिन ग्राहकों ने मुझे पैसे दिए हैं मैं आसानी से जोड़कर बता देता था, और यहाँ तक कि मैं रील ऑफ में हर एक बात को स्पष्ट रूप से उनके सामने शमशुद्दीन जी के सामने रख देता था कि किसने क्या कहा है और किसने कितने पैसे दिए हैं। मोस्टली आई लर्न दैट टू बी अ वर्किंग मैन मीन्स यू हैड टू बी अप एंड रेडी टू फेस द डे वॉट एवर एल्स मे हैपन टू यू। मोस्टली आई लर्न दैट टू बी अ वर्किंग मैन। मैंने धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या सीख लिया कि कैसे एक व्यक्ति काम करता है, कैसे उसे समझना चाहिए। मैं हमेशा दिन प्रतिदिन उस चीज़ के लिए तैयार रहता। वॉट एवर एल्स में हैपन टू यू, वो कुछ भी हो सकता है, आज कुछ हो सकता है, कल कुछ हो सकता है। हर एक चीज़ के लिए हमें क्या होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। होमवर्क, ट्यूशन, प्रेयर ऑल कैरिड ऑन, बट द मद्रास धनुषकोडी मेल वुड नॉट वेट फॉर मी। मेरा गृह कार्य, ट्यूशन जाना, प्रार्थना करना, हर एक चीज़ चलता रहा, लेकिन मद्रास की जो धनुषकोडी ट्रेन थी वो कभी मेरे लिए नहीं रुकती थी। आई हैड टू बी प्रेजेंट एट द स्टेशन एट द करेक्ट टाइम एंड एट द करेक्ट पॉइंट टू कैच द बंडल्स एज दे केम फ्लाइंग इन। मुझे हमेशा क्या करना पड़ता था, वहाँ पर सही समय पर उपस्थित रहना पड़ता था और सही जगह पर खड़ा रहना पड़ता था, ताकि जो बंडल उस ट्रेन में से उड़ते हुए आए उन्हें मैं अपने हाथों में पकड़ सकूँ। इट वॉज माई फर्स्ट ब्रश विथ टेकिंग अप अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड seeing to it that I kept my word to my cousin no matter what. It was also a most enjoyable time and I loved every moment of it, notwithstanding the intense टायर्डनेस एवरी नाइट। हमेशा मैं क्या करता, मेरी पहली शुरुआत थी वो जिससे मुझे जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। मुझे हर एक शब्द में क्या करता था, मैं मेरे कजिन जो सामने जलालुद्दीन शमशुद्दीन जो थे उनके सामने रखता था, जिसका कोई महत्व नहीं होता था। इट वॉज ऑल्सो ए मोस्ट एन्जॉयबल टाइम। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, वो दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे, आनंदित थे, उत्सुक थे। मैं उन दिनों को आज भी याद करता हूँ
और मतलब याद करते थे वो, और इसके साथ साथ जब भी वो सोते उन चीज़ों को, हर एक चीज़ को याद करते हुए अपनी थकान को वो भूल जाया करते थे. My mother often fretted at my taking up this additional work and tool it was taking on me, but I shook my head and smiled at her. मेरी माँ अक्सर क्या करती, मुझे मना करती. किस चीज़ के लिए निरंतर मना करती, कि तुम चिंतित मत रहा करो. तो हमेशा मैं यही कहता, मैं अपना सिर हिला देता और उन्हें ये बता देता कि मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ. Knowing that my earnings were somehow helping us all and that she was secretly proud of me for having taken on the role of a working man at the age of 8 kept me going with a smile on my face. धीरे धीरे मुझे जब ऐसा एहसास हुआ कि मेरी कमाई से वो घर खर्चा चल रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो यहाँ तक कि मेरी माँ को भी मुझ पर क्या होने लगा, गर्व होने लगा. वो अंदर ही अंदर मुझ पर गर्व करने लगी. और हमेशा जब भी मैं वहाँ से जाता काम के लिए, जब मैं 8 साल का मैंने काम करना शुरू किया था, जब भी मैं जाता मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही बाहर निकलता था. Yes students, now I have completed the chapter. I have explained you the whole chapter. What you have to do, you have to read the whole word meanings of this chapter, and together you have to write this everything in it. There should be the whole work in your fair notebook. You have to read the whole chapter also. Okay, in next video we will learn some more things, means we will do some questions, we will solve some questions of this chapter. Okay, have a nice day.